मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम। इस विषय पर उद्बोधन प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर एच.डी. पाठक जी उपस्थित हैं। आपका कल हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और आपका परिचय भी हमारे से कल हुआ था। इसी के साथ साथ में आपसे मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना है सर आपसे, आप इस विषय पर हमें उद्बोधन प्रदान कर अनुग्रहित करें सर। सर I will start with the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmain Sri Gurave Namaha, Tasmain Sri Gurave Namaha. With due respect to Swami Kevalanand, the organizers of this CME and all yoga lovers. Yesterday we discussed about the basis of scientific basis of yoga. Today our topic is principles of yoga as therapy for yoga professionals. Because nowadays, since yoga has got much more importance, so everybody and anybody is starting doing some 1 month course and then starting treating the patients with the yoga. So that is not correct. We should know in detail, and that is why this lecture is arranged. Now, modern medicine has advanced like anything. What it has done, it has added the days to the life, but no life to those days. Non-communicable diseases are increasing, and as age advances, usually they don't have disease-free life. They have to live with disease, and also they have to live with the complications. And because of the complication, life becomes miserable. And sometimes patient thinks that इससे बेहतर है कि मर जाए। तो ऐसी हालत में हमें आजकल रहना पड़ रहा है, और फिर इससे छुटकारा पाने के लिए हम अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। Now, yoga as therapy, it can be divided into, it can be preventive, it can be curative, it can be adjuvant, and it can be palliative. Now, what is preventive? Preventive is to set the biological clock of our body in such a way that it will not go wrong. And if something happens, you can add some more kriya. Yoga is a 5,000-year-old science. Sages used to practice to keep themselves healthy so that they can do their sadhana. उनके समय में डॉक्टर वैद्य वगैरह कोई नहीं थे, और वो तपश्चर्या करते थे, और तपश्चर्या करते समय समझो कुछ बीमारी हो गई तो तपश्चर्या में भंग हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा अभ्यास ढूंढ के निकाला कि ये यदि अभ्यास करेंगे हम, तो हम खुद को स्वास्थ्यपूर्ण रह सकते हैं और हमारी साधना सही ढंग से हो सकती है। अभी ऋषि मुनि लोग ये अभ्यास करते थे क्योंकि उनको मोक्ष पाना था। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न आदमी है, उसको मोक्ष से कुछ पड़ा नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष। उसको कहा कि योग करो तो बोलता अरे योग क्या करने का, अभी हम इतने मॉडर्न हो गए, हम चांद पे गए, मंगल पे गए, इतना एडवांस मेडिसिन हो गया, और तुम ये क्या फुसफुस करने की बात करते हैं, वो तो बुढ़ापे में जंगल में जाके बैठ के करना है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग योग करते हैं और स्वास्थ्यपूर्ण है, तो इनको समझ में आया कि दिस इज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ द योगा। और ये आजकल का जो 21वीं सदी का आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, ये बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है। तो उसने देखा कि अरे योग करने से मैं स्वास्थ्यपूर्ण रह सकता हूँ, तो चलो उसके बहाने योग करेंगे। एंड दैट इज व्हाई पीपल आर स्टार्टेड डूइंग योगा। नाउ क्यूरेटिव, यूजुअली इन अर्ली स्टेजेस, यदि डायबिटीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, नया नया है, और 1-2 गोली के ऊपर उसका इलाज होता है। तो ऐसे पेशेंट हम क्यूरेटिव इलाज से कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को यदि योग का अभ्यास देंगे तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। If it is very long standing, then it is difficult to cure it completely, but at least you can keep it under control. Acidity.
acidity 100% diabetes, blood pressure, myocardial infarction and obesity. These are non-communicable diseases. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है and it is not caused by because of any bacteria or virus or any organism. It is because of the mental tension. And there is no medicine for mental tension in allopathy, but yoga has got. So curative, if it is at a very early stage, it can be possible. Now adjuvant. Now in chronic diseases, suppose diabetes hai, blood pressure hai, heart attack hai, it is diagnosed and he is on treatment. Now this patient cannot stop his treatment. He has to continue it. But by practicing yoga, you can reduce the doses of anti-diabetic drugs or antihypertensive drugs. So here it will act as a adjuvant therapy in chronic diseases. Then here cure is not possible because suppose diabetes का patient diagnosis हो गया, उसने कहा कि अभी मैं गोली लिया, मैं ठीक हो गया क्या? हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक तो गोली चालू रखेगा तब तक. That means he has to continue the medicine. So when cure is not completely possible, there yoga will work as an adjuvant therapy. It will prevent progress of the disease. समझो मधुमेह है, diabetes है, so it will not progress. Usually what we find, diabetes once diagnosed, initially he is on 1 or 2 tablets, then slowly tablets go on increasing, then sometime he might have to take injection insulin. So this will not happen. Also can keep the disease under control, means the tablets can be reduced by practicing regular yoga. How it will be reduced? Because when you are practicing yogic kriya, suppose you are doing Agnisara and other kriyas, doing meditation, so mental stress will be reduced. So pancreas will slowly work better. So insulin will be properly secreted. It will be activated properly. So blood sugar level will come down and disease can be kept under control. May not develop complications. It is important in case of diabetes. If you know, diabetes is the one disease which can affect any part of the body. If it affects eyes, you get blurred vision. If it affects heart, you get myocardial infarction or heart attack. If it affects kidneys, patient has to undergo dialysis twice a week. If it affects the nerves of the leg, then he may develop gangrene. So it is one of the most dreaded disease, silent killer nowadays we can call. So if you can keep the diabetes under control, you will not get complication. And if you don't get complication, if this disease is under control, your life will become definitely comfortable. So this is the adjuvant therapy. Now coming to the palliative. Now palliative means where you cannot do anything, you cannot do much. So in seriously ill patient or very chronic, non-curable, chronic, life-threatening diseases, there palliative treatment will be possible. In allopathy hospitals also, nowadays, there is a palliative care department. What they do? They give symptomatic treatment. Now, suppose patient has got pain, he has got a difficulty in making movements because of the paraplegia, then we give physiotherapy. For pain, we give analgesics. Suppose he is not able to take the food properly, not able to chew, we give it in a liquid form. If he is not able to take from oral cavity, we can put a tube and give it. So these are the all symptomatic treatment. Now care will relieve the pain and other symptoms and may improve quality of life for people of any age and at any stage. Because as such they are miserable because of the disease. And then if there is pain, if he is not able to eat properly, he cannot swallow, he cannot chew, then again he becomes irritable. So all these are taken care of in palliative treatment in allopathy department. Also, counseling of family member facing the problem due to life-threatening illness of the patient. Because so many times relatives know that he cannot come out of this, he cannot become normal, but then you have to carry out all these things. So counseling is also necessary. So this is done by the modern palliative department. Now, what is the yogic role in the palliative care? Now we can divide it into two. Patient having little better life expectancy means they are having chronic disease.
They are not that bad. They will survive, but if they are given some support. So which are those diseases? Like cancer, less malignant with better life expectancy. Now cancer is one disease. Once you say cancer, patient is half dead. So those patients whose diagnosis say that it is not very malignant, means their lifespan is not very short. So those cases with better life expectancy, then cerebrovascular accident, or you must be knowing general term, hemorrhage into the brain. उससे क्या होता है? पैराप्लेजिया होता है या हेमिप्लेजिया होता है. एक साइड जो है राइट साइड पैरालाइज हो गई, इज नॉट एबल टू मेक मूवमेंट ऑफ द राइट आर्म और राइट लेग. Then Parkinson's disease. As age advances, patient gets jerky movements like this. He cannot hold a hand properly. He cannot walk properly. So that is Parkinson's. Then Alzheimer's. What is Alzheimer's? They forget. They don't remember. Just now they said something and after 10 minutes they forget what I said. This is a long-standing disease. Then rheumatoid arthritis. Again, this is very miserable disease. All the joints are swollen. He is not able to walk and all other complications are there. Next is the aging process. As age advances, slowly the efficiency of all the systems goes down. And then slowly you start getting some diseases, or because of the aging, you are not able to walk properly. Then chronic renal failure. The kidneys are failing. It is usually seen in the cases of diabetes, because diabetes, I told you, it has got effect on all organs of the body, particularly kidneys, and then it gets chronic renal failure. So these are all diseases where the life expectancy is little better, so they require little more effective palliative care so that they can survive. Then second group is patient in terminal stages of cancer or any other disease with less life expectancy. अभी हमें मालूम है कि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले, लेकिन कई बार ऐसा होता है, रिलेटिव बोलते हैं नहीं, आई कांट सी हिम, उसकी जो तगमग है मैं नहीं देख सकता हूँ. सो ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट द टर्मिनल पार्ट ऑफ देयर लाइफ इट शुड बी मेड स्मूथ, सो डेथ शुड बी little less troublesome to the patient. Now, what is palliative treatment? It may be difficult to implement in terminally ill patient. The patient बहुत serious है, he cannot do anything on his own, everything is required, he is irritable, he is not understanding anything. At that juncture, you cannot give palliative treatment because he is not in senses at all to listen to you. So the best is to introduce at an early stage. So palliative treatment, we can start from the day of diagnosis of the disease, as at this moment, it is itself a big jolt to the patient and his family. Suppose some patient comes, I do examination, I do some biopsy, and the report comes that he has got cancer. Moment I tell patient, you have got cancer, he is half dead. So the palliative care starts from there, counseling the patient. What you have to tell? No, don't worry, all cancers are not similar, because he knows that once cancer is there, that means finished. But there are few cancers which are having good life expectancy and your cancer is of that type. So he will feel, okay, I'm not that type of cancer. So they need physical and mental support. They have to be mentally fit to face the problems with sound mind and also make them physically self-sufficient, which is we have to start right from the day of diagnosis. So this is first step. Then second stage, improving the blood circulation and oxygenation to the part of the body so that improves its function. Now, whichever part of the body is involved in any particular disease, that functioning should improve. And for that, what happens? It requires proper oxygenation. So how can you get? It is by simple Kapalbhati, Ujjayi, and then some asanas to maintain the flexibility of the body. Now, building up the confidence that he can perform routine things. So many times, patients lose their confidence very fast. No, now I cannot do. No, I cannot do it. So you have to
give the confidence that yes, you can do it. And third, improving the level of pain perception. Now, the pain is very important in all the diseases. It has to be tackled at mind level because pain perception depends upon self-efficacy, fear avoidance belief, and pursued social support. Pain measurement is lacking in modern medicine. We don't have any measuring scale to measure what is the strength of the pain, what is the level of the pain. Pain varies with individuals. It depends upon the tolerance towards pain. One may make lots of hue and cry for the pain which other patient may not show any reaction. आपको याद होगा कि आप कभी आपके बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन के लिए, तो कोई बच्चे जो रहते हैं हाथ कंधा आगे करते, दे दो इंजेक्शन, ले लेते चुपचाप, कुछ नहीं, थोड़ा सुई ऐसा करते. लेकिन कोई ऐसे बच्चे रहते कि उनको 4 लोगों को पकड़ना पड़ता है, तभी वो हाथ स्थिर हो रह सकता और फिर इंजेक्शन ले सकते. अभी सुई वही है, डॉक्टर वही है, इंजेक्शन वही है, लेकिन एक पेशेंट मेक्स such a big hue and cry. Why? Because this is individual tolerance, which is a subjective factor with regards to pain perception and expression. Now, once pain is under control, everything is easy. Now, and this pain control is possible by doing Kriya Yoga, meditation, so that mental perception improves and your pain tolerance improves, and then you will not make much hue and cry. Now, palliation can be divided into 3. Immediately after diagnosis of the disease, makes his mind sound and strong enough to face the disease boldly to get good results of the treatment. Now, so many times you must have seen, if patient loses his confidence, the way you think you become. आपको एक सादा उदाहरण देता हूँ. एखादे दोस्त के आपको आप बोलो, अरे क्या आज तू बीमार दिख रहा है, तबीयत ठीक है ना? बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ. फिर आप आपके दूसरे दोस्त को बोलो, अरे वो आ रहा है सामने, उसको बोल जा रहा है, कह रहे तू बीमार है क्या? फिर वो ऐसा ही कहेगा, अरे तू बीमार है क्या? फिर और 1-2 लोग को आप बोलेंगे, तो शाम तक ही ऐसा लगेगा, अरे मैं सच में बीमार हूँ. वो बीमार हो जाता है. क्यों? Because mind starts thinking like that. Similarly, when the diagnosis of cancer is given, patient cancer हो गया खत्म मेरा. So immediately after treatment, that palliation. Second, during active treatment, here he fares better during surgery as respiratory capacity has improved, so anesthesia problems are not there. मैंने ये प्रयोग किया, जो मेजर सर्जरी होती है, जो 3 घंटा 4 घंटा ऑपरेशन चलता है, तो ऐसे लोगों को हम ट्यूब डाल के उसको 4 घंटा बेहोश रखते हैं. तो ऐसे लोगों के जो लंग्स है, फेफड़े है, वो अच्छी तरह से काम करते होंगे. तो जब पेशेंट का ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जब एनेस्थेटिस्ट भूल देने वाला डॉक्टर उसका ट्यूब निकालता है, तो पेशेंट होश में आ जाता है. लेकिन जो लोगों के फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं करते होंगे या ऐसे बीमारी की वजह से उनकी जनरल कंडीशन वीक होगी, तो ऐसे पेशेंट जब ऑपरेशन होने के बाद जब एनेस्थेटिस्ट ट्यूब निकलता है तो होश में नहीं आते हैं. फिर कभी कभी उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और फिर 1-2 दिन के बाद आते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके फेफड़ों की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं होती है. तो ऐसे में कई पेशेंट को, अभी ये मेजर सर्जरी होती है, समझो एक पेट का कैंसर है, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए समझो 15 दिन पहले तय होता है कि 15 दिन के बाद आपका हम ऑपरेशन करेंगे, तब तक ये सारी इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे. तो ऐसे पेशेंट को मैंने योग का अभ्यास दिया और आश्चर्य होगा आपको कि ये पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में गए, उनका जब ऑपरेशन हो गया, तो पहले तो उनको योगा बताया था, मेडिटेशन बताया, तो जो खंबीर हो गए थे, तो बोले नहीं मैं तो अच्छा होने वाला, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं. और जब ऑपरेशन होने के बाद एनेस्थेटिस्ट ने उनकी ट्यूब निकाली, भूल देने वाली जो डालती है, तो तुरंत होश में आ गए. तो एनेस्थेटिस्ट भी चौंक गया, अरे कैसे क्या हो गया ये 65 ईयर ओल्ड पेशेंट और ऑपरेशन इतना बड़ा 4 घंटे का होगा, तुरंत होश में आ गया. फिर उसने पूछा कि आप क्या करते हो, कैसे हो? तो उसने बताया मैं गए 1 महीने से योग करता हूँ. तो ड्यूरिंग एक्टिव ट्रीटमेंट यू विल फाइंड द बेटर इफेक्ट. एंड जब उसकी मन की धारणा अच्छी होती है तो हीलिंग अच्छा होता है. सो पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स आर आल्सो गुड.
after main treatment is over, patient may be ambulatory or may not be ambulatory. So post-operative will have fast and good recovery and convalescence period is not stormy but smooth. जो लोग ऑपरेशन के पहले 1 महीना योग का अभ्यास करते हैं और फिर ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन होने के बाद वो 10 दिन में छुट्टी हो जाती है, उनके टाके निकाल के घर भेजते हैं। और कुछ पेशेंट क्या होता है, 1 महीना हॉस्पिटल में रहते हैं, टाके निकालते लेकिन ठीक नहीं होते, फिर उनको टाका देना पड़ता है, फिर फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, ऐसे कई प्रकार होते हैं। तो आफ्टर मेन ट्रीटमेंट ऑल्सो दे विल गेट बेटर इफेक्ट। पेशेंट कैन प्रैक्टिस योगा अंडर योगा एक्सपर्ट्स गाइडेंस। अभी इतना सब सुनने के बाद आप सोचेंगे तो इसलिए एक्सपर्ट के अंदर ही उसको योग देना है। पेशेंट शुड नॉट स्टॉप एनी मेडिसिन एडवाइस टू हिम बाय डॉक्टर। योग का अभ्यास दे रहे हैं तो उसको तुरंत, ठीक है अभी योग कर रहा है तो गोली लेने की जरूरत नहीं, स्टॉप इट, दैट विल नॉट डू। Thus, yoga and medicine may prove to be mutually complementary. We have to do it simultaneously. Now, in cancer or carcinoma, usually you should not give false assurances that हाँ ठीक है अभी तुम आ गए मेरे पास, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी होने दो। ऐसा नहीं होता है, because we don't know the cause of cancer, so we don't know the treatment of the cancer. What we do, जो पार्ट खराब हो गया उसको हम काट के फेंक देते हैं, और फिर जो कुछ पेशी यहाँ पे कैंसर था ये हमने काट के निकाल दिया, लेकिन ये पेशी यहाँ पे आ गए तो उनको मारने के लिए हम फिर उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन यदि हम उसको पहले से योग का अभ्यास दिया तो हिज मॉरल विल बी बूस्टेड एंड सो इसके कॉम्प्लिकेशंस है वो कम मात्रा में रहेंगे। सच पेशेंट शुड बी गिवन ब्रीदिंग टेक्निक। अभी उनको क्या दे सकते हैं हम, तो प्राण धारणा, कपालभाति, क्रिया योग, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री अभ्यास दे सकते हैं। ये लोगों को आसनों का अभ्यास हम ज्यादा मात्रा में नहीं देंगे, उसके बारे में जब कैंसर का ये आएगा तभी उसके बारे में बात करेगा। नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट जो खुद के बल के ऊपर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दे रिक्वायर असिस्टेंट, केयर टेकर। सो ये लोगों की दिक्कतें ज्यादा रहती है। क्या रहती है, द फिजिकल लेवल मेकिंग हिम अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी। वो हाथ पैर हिला नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, तो फिर उनको मन में यह होता है कि आई कैन नॉट गेट अप, आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट सिट, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी, सो आई एम वेरी मच डिपेंडेंट। तो पहले वो डाउन हो जाते, दे आर मेंटली डिप्रेस। फिर क्या होता है, दे ट्राई टू अवॉइड द डूइंग थिंग्स, बिकॉज करना है तो फिर किसी को बुलाना पड़ता है, चलो जरा हाथ उठाओ, मेरे को बैठाओ, तो जाने दो, क्यों उसको तकलीफ देना है। फिर क्या होता है, फिर दे ट्राई टू गेट सिंपैथी, फिर लोगों से सिंपैथी मिलने की कोशिश करते कि अरे यार क्या बहुत ही बीमार है, कुछ नहीं कर पा रहा है, हाथ भी नहीं उठा सकता है, बैठ भी नहीं सकता है खुद, एंड देन दे बिकम मोर डिपेंडेंट। एंड इस माहौल में आहिस्ते आहिस्ते दे लूज द इंटरेस्ट इन द लाइफ। फिर साइकोसोमेटिक इफेक्ट आ जाता है, विच लीड्स टू पुअर रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। यदि आपके मन की खंभीरता होगी तो आपको कम गोलियां दिए तो भी आप ठीक हो सकते हैं। इसको कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट एंड प्लासिबो इफेक्ट, नासिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, दो पेशेंट को, एक को सही गोली दी जाती है और एक को प्लासिबो दी जाती है। उसको सिर्फ बताया जाता है कि आई एम गिविंग यू दिस टैबलेट एंड इट विल क्योर यू। उसमें कुछ दवा नहीं रहती, लेकिन वो भी पेशेंट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसको मॉरल दिया है कि ये गोली खाए तो मैं अच्छा होने वाला है। सो दिस साइकोसोमेटिक इफेक्ट, अब ये इन्होंने ठान लिया कि मैं कुछ ठीक होने वाला नहीं, मैं बैठ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर वो और विशेष सर्कल होता है। इनएक्टिविटी है तो और बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफनेस हो गया तो हाथ पैर नहीं हिला सकते, हाथ पैर नहीं हिला सकते तो उठ बैठ नहीं सकते, फिर और इनएक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड दिस इज अ विशेष सर्कल विच यू कैन नॉट ब्रेक। Such non-ambulatory patient, you should give such kriyas which they can perform easily, and that yoga teacher should get it done from them. अभी इसमें क्या है, लेटे लेटे तुम श्वास के ऊपर ध्यान दो, प्राण धारणा करो, बाकी कुछ नहीं करो। हाथ पैर जितना हिला सकते हाथ पैर हिलाओ, अर्ध हलासन, पैर थोड़ा सा ऊपर उठाओ, जमता है क्या देखो, क्रोकोडाइल को जरा साइड पे टर्न करो, दोनों पैर घुटने में मोड़ के थोड़ा लेफ्ट ऊपर, थोड़ा जस्ट लिटिल बिट, जितना वो कर सकते हैं एज पर देयर कैपेसिटी। क्योंकि आप उसको ज्यादा करने को लगाएंगे तो वह नहीं जमते, छोड़ दो मेरे को। सो दैट ऑल्सो शुड नॉट हैपन। सो गिव लिटिल कपालभाति, जस्ट आस्क हिम टू डू फर्स्ट डीप ब्रीदिंग, देन क्रिया योग, इसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओंकार कर सकते हैं, लेटे लेटे ये कर सकता है, गायत्री कर सकते हैं,
and meditation. So this will help him to improve his mental setup and he may be able to do something. This is the basic thing how yoga should be implemented. Now, once you are a yoga teacher or yoga professional, first you should know what are the precautions while practicing yoga for a healthy person. क्योंकि ये मालूम नहीं होगा तो आप गलतियां काफी करेंगे. So basic, what are the things? I'm just going to again make you aware of the things. Best time to practice yoga is early in the morning around 4:30 a.m. to sunrise, which is called Brahma Muhurta. भी कई लोगों को 4:30 कब बजते पता नहीं चलता है क्योंकि वो सूर्योदय होते हैं. सूर्य ऊपर आने के बाद 2 घंटे के बाद उठते हैं तो उनको हम सूर्योदय कहते हैं. तो ऐसे लोग क्या करें, जब भी आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद में आप योग का अभ्यास करो. पहले ब्रश करो, टॉयलेट जाके आ जाओ और फिर योग का अभ्यास करो और फिर उसके बाद में 40 मिनट कुछ मत खाओ, ब्रेकफास्ट मत करो. अभी समझिए ये भी नहीं जमता है तो एनी अदर टाइम, अभी शिफ्ट ड्यूटी है, मुझे 6 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है तो क्या करें, तो डू इट इन द इवनिंग. लेकिन आपका पेट लाइट खाना खाया हो तो 4 घंटे का एम्प्टी चाहिए, मीन्स एटलीस्ट आफ्टर 4 आवर्स ऑफ योर लाइट फूड. यार फुल मील किया होगा तो 6 घंटे का तो भी उसमें डिफरेंस चाहिए. Yoga is a sadhana and not exercise. Should not practice with force, which may be harmful practice and should be as per your capacity. यह हमेशा मैं बार बार कहता हूं, बलपूर्वक करेगा तो बलहानि होगी. योग ये साधना है, कसरत नहीं है. तो ये अपनी क्षमता के अनुसार करना है, इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हमें नहीं करना है. One should not practice one single asana or kriya, but what your yoga module which is advised should be practiced. कई बार ऐसे मेरे पास आते हैं पेशेंट, बोलते मुझे ऐसा करो, मुझे इतना कुछ समय नहीं है, मुझे तुम ऐसा करो, एक आसन बताइए, मैं वो रोज करूंगा. तो एक आसन करने से फायदा नहीं होता है, बिकॉज योग इज ए होलिस्टिक अप्रोच और हमारे शरीर की सभी सिस्टम इंटरलिंक्ड है, साथ में काम करते हैं. इसलिए कुछ अभ्यास जो मॉड्यूल तय किया गया है वो करने से हमारे शरीर के सभी सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे. इसीलिए डोंट फोर्स दैट गिव मी ओनली वन सिंगल क्रिया एंड आई विल प्रैक्टिस इट रेगुलरली. One should not try to reach final stage of asana on the very first day or should not practice breathing techniques to its maximum within first few days. कई बार ऐसा होता है कि और एंथुजियाज्म में हम देखते कि कपालभाति हम एक स्ट्रोक में समझो एक सेट में 120-100 स्ट्रोक कर सकते हैं. लेकिन आज गुरुजी ने मुझे सिर्फ 20 बार ही दिया तो मैं जबरदस्ती करेगा, ऐसा नहीं करना है. बिकॉज आप पहली बार कभी योग नहीं किया था, आज पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार जब कर रहे थे आपने आपके फेफड़े को थोड़ा तो आदत होना चाहिए, इसलिए आपको पहले 20 बार दिया. स्लोली गो ऑन इम्प्रूविंग, increasing the number so that the capacity will improve and slowly you will be able to do it at a full given time, given number. One should not practice yoga if you are very tired. बहुत थके भागे हो गए तो योगा नहीं करना चाहिए. Ladies should not practice yoga during menses. In pregnancy, should practice yoga under supervision of experienced yoga expert in this field. ये बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ एक्सपीरियंस योगा एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. जैसे हमारे एलोपैथी में स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग है, जनरल सर्जन अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है. उसी प्रकार जो प्रेगनेंसी में योगा देने का एक्सपर्ट है उसी के अंडर आप योगा सीखें. वन शुड नॉट प्रैक्टिस योगा बाय जस्ट रीडिंग द बुक और वॉचिंग टेलीविजन और समबडी प्रैक्टिसिंग इट. मस्ट प्रैक्टिस अंडर एक्सपर्ट योगा टीचर. इसलिए मैं मेरे क्लास में हमेशा कहता हूँ कि आप योगा सीख गए तो आप घर जाके आपके बाकी मेंबर को मत सिखाओ, क्योंकि हम जब सिखाते हैं तो आप 50% ध्यान रखते हैं, जब घर में करते तो 25% याद रहता है, और आप जब दूसरे को सिखाएंगे तो 10% याद रहेगा और वो 5% करेगा और फिर बोलेगा अरे योग किया मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो योग बदनाम हो जाएगा. इसीलिए ऑलवेज डू इट अंडर एक्सपर्ट योगा टीचर. हेल्थ without any disease can practice all yogic practices in a progressive manner and as per individual capacity.
Patients with acute conditions should take allopathic treatment to tide over the crisis or acuteness. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Patient should not practice whole of yoga module advised for a particular disease within first few days. Patient should do it in a progressive manner, gradually adding practices step by step. And most important thing, patient should never stop any medicine while practicing yoga unless advised by treating physician. मैं कई ओवर एंथुजियास्टिक टीचर्स देखे हैं. डायबिटीज का पेशेंट आया, उसको योगा का अभ्यास देने के लिए शुरू किया और फिर बोला कल से गोली बंद कर दे, अब तू मेरे पास आया सब ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. He has to practice योगा. जब योगिक प्रैक्टिसेस करने से उसके शरीर में बदलाव होंगे, पैंक्रियास सही ढंग से काम करेगा, तभी इंसुलिन तैयार होगा, शुगर लेवल कम होगी, फिर उसका डॉक्टर तय करेगा कि हाँ अभी शुगर कम होगी, उसकी गोली कम करेंगे. Yoga teacher and patient should not change the medicine or should not stop the medicine on his own. Now coming to the main topic, yoga professionals should know when you are going to deal the patient with yogic therapy, which part of the body is affected in a given disease. क्योंकि आजकल जो है पेशेंट आपके पास यदि आएगा, क्योंकि अभी सब लोग बोलते हैं अरे योगा से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो कल पेशेंट सोचेगा क्यों इतनी महंगी गोली खाने का, चलो योगा के पास जाते हैं. और वो आपके सामने आके बैठा और उसने कहा कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है. अभी यदि आपको मालूम ही नहीं होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा ओके अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके ओके ओके. देन यू विल टेल दैट आई एम गेटिंग पेन हियर, ओके ओके. आप इतना ही करेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं योगा टीचर को. फिर वो पेशेंट कहेगा अरे इसको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो कहाँ पे है, कौन सा शरीर का भाग अफेक्टेड है, तो ये क्या मुझे ट्रीटमेंट देगा. तो ही विल नॉट डेवलप फेथ इन यू. सो यू मस्ट नो विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. जो पेशेंट आया उसने कहा मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इफ यू से अच्छा आंतड़ियों के ऊपर सूजन आई है क्या, बड़ी आंत के ऊपर, अच्छा लूज मोशन ज्यादा होते हैं तो सैलर्जोपेरिन लेता है, तो उसको लगेगा अरे इसको सब मालूम है. तो देन पेशेंट विल हैव फेथ, बिकॉज half the treatment depends upon the faith. विश्वास के ऊपर 50% रिजल्ट होते हैं. Then what are the symptoms and signs of the disease? Any given disease you should know what are the signs and symptoms. लक्षण क्या है और उसके साइंस क्या है. Then whether the disease is acute or chronic, इसके बारे में मैं अगले इसमें बात करने वाला हूँ स्लाइड में. What are the general investigations in a given disease? आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इतना नहीं कि आप पूरा डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन कुछ तो वो हार्ट अटैक है तो एंजियोग्राफी की रहती है, या स्ट्रेस टेस्ट किया रहता है, या समझो पेट का कुछ है तो सीटी स्कैन किया रहता है, समझो फेफड़े की कुछ तकलीफ है तो एक्सरे चेस्ट किया रहता है. तो एटलीस्ट ये नाम जो भी मालूम हो जाना है. फिर लिपिड प्रोफाइल ये मालूम चाहिए. कैन योगा क्योर दिस डिसीज कंप्लीटली. जो पेशेंट आपके सामने बीमारी से आया है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं क्या, इसका आप मन में विचार करो पहले. एंड वी मस्ट नो द इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस इन ईच डिसीज. हर बीमारी में हम योगा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए. और फिर वेदर योगा can be used as a preventive, curative, adjuvant and palliative. ये यदि आप मन में ठान लेंगे तो फिर आप पेशेंट को ऐसा बता सकते कि हाँ ठीक है प्रिवेंटिव है तो ठीक हो जाएगा, क्यूरेटिव है हाँ एकदम अच्छा हो जाएगा, एडजुवेंट है तुझे गोली दवा चालू रखना पड़ेगा और फिर योगा का अभ्यास करना पड़ेगा, पैलिएटिव हाँ इससे पूरा ठीक नहीं होगा लेकिन तेरा जो आगे का लाइफ है वो सुकर हो जाएगा. That much you must tell the patient. So you must know which type of yoga therapy you are going to give this patient, whether it is preventive, curative, adjuvant and palliative. You can keep us healthy, also can cure diseases, but there are some limitations. Not all patients can be treated by yoga. Swami Kevalanand ji has rightly said that every therapy has its own limitations. So too is the case of yoga applied as therapy. हर पैथी को जैसे लिमिटेशंस है उसी प्रकार योग की भी लिमिटेशंस है, और कहाँ पे हम योग इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे नहीं कर सकते इसकी हमें पूरी तरह से जानकारी चाहिए, तभी हम पेशेंट को योग के जरिए अच्छा कर सकते हैं.
physiology means normal functioning of the human body, which may lead to pathology means abnormal functioning of resulting in the disease. Now बीमारी हो गई तो कौन से कैसे हो सकती है? It can be inborn defects, that is called congenital, जो पैदाइशी बीमारी होती है. फिर it may be because of the organisms, because of the stress, or because of the derangement into the system. Now in inborn defects, congenital, this usually you cannot do with the help of yoga, but rest all you can treat with the yogic practices. Now, when you want to treat the patient with yoga, you must know first basic knowledge that what are the types of diseases. I am not talking about the system-wise disease. सभी system के disease you can club into two categories. One is acute and another is chronic. Now, what is acute and what is chronic? We'll deal it one by one. Acute condition, patient was all right till he gets symptoms as follows and he cannot carry on day-to-day routine work. वो अभी तक अच्छा था 5 मिनट पहले और एकदम उसको एकाएक ऐसा क्या हो गया कि अभी वो काम नहीं कर पा रहा है. That is called acute condition. अभी कौन से हैं? तो first is severe sudden chest pain which may be due to the heart attack. यदि पेशेंट को लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होता है, यूजुअली हार्ट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड, तो वहां पे जब पेन होता है तो दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. पेशेंट विल हैव सीवियर एगोनाइजिंग पेन. ऐसा वो कहेगा कि ऐसा दर्द मुझे कभी पहले नहीं हुआ था. एंड ही इज नॉट एबल टू सिट, नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ही इज स्वेटिंग, पसीना पसीना हो रहा है, उसकी पल्स नाड़ी वीक हो गई है, ये पेशेंट कुछ भी काम नहीं कर सकता है. सो दिस इज एक्यूट कंडीशन. देन सेकंड इज सडन ब्रेथलेसनेस. अभी तक अच्छा बैठा था खासा और सडनली उसको धाप लगने लगी, दम लगने लगा, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, सडन सीवियर ब्रेथलेसनेस. अभी ऐसा पेशेंट यदि ये समझो अस्थमा से हुआ होगा, दमा की वजह से कभी कभी अटैक आता है तो ब्रेथलेसनेस होता है. अभी हमने बताया था कल कि अस्थमा के पेशेंट को उज्जयी का अभ्यास देंगे तो ठीक हो जाएगा. तो समझो ऐसा अस्थमेटिक पेशेंट है, आपके सामने बैठा है, उसको अटैक आ गया तो आप बोलेंगे हॉस्पिटल क्यों जाता है, बैठ बैठ इधर मैं तुझे उज्जयी सिखाता हूँ. ऐसा करने से क्या होगा? पेशेंट मर जाएगा. क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई तो आहिस्ते आहिस्ते सभी सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं. सो दिस इज एक्यूट कंडीशन. सो ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल फर्स्ट. पहले हॉस्पिटल जाके उसको इंजेक्शन लेना है, डेरिफाइलिन, उससे राहत नहीं मिली तो फिर सलाइन में से इंजेक्शन लेना है, फिर नेबुलाइजर लगाना है, ऑक्सीजन मास्क देना है, तभी वो सर्वाइव होगा. सो दिस इज सडन ब्रेथलेसनेस. सीवियर अनबेरेबल पेन इन एब्डोमेन. पेट में दर्द हो रहा है. अभी कभी कभी ज्यादा खाना खा गया, अपचन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, पेट में दर्द होता है, गैस ट्रबल होता है. दैट इज ओके, दैट इज नॉट वेरी सीरियस. लेकिन पेट में अल्सर है और वो अल्सर फूट गया है, बर्स्ट ओपन हो गया है, सो दैट इज इमरजेंसी. Patient will have severe agonizing pain. He will not be able to stand. He will just hold his abdomen and sit like this. This is urgent. अभी ऐसे पेशेंट को यदि हम तुरंत इलाज नहीं करेंगे, पेशेंट को हमें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके वो जो सुराख हो गया, जो पेट के अल्सर फट गया, उसको बंद करेंगे तो ही वो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा. सो दिस इज अगेन एक्यूट. अपेंडिसाइटिस. अपेंडिक्स यहाँ पे बताया था कल मैंने, राइट साइड में नीचे रहता है. अपेंडिक्स को हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ काम नहीं है, इसलिए वो कभी गड़बड़ करने लगता है ना, न्यूसेंस करता है. अपेंडिसाइटिस होता है तो हम उसको निकाल के फेंक देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अभी यही अपेंडिक्स, यदि हम दर्द हो रहा है अपेंडिक्स से, ठीक है बैठ योगा कर मैं सिखाता हूँ, यदि अपेंडिक्स फट जाएगा तो पेशेंट विल डाई. सो अगेन इट इज एक्यूट. इफ एनी पेशेंट इफ इज नॉट ट्रीटेड विथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, patient may die. So these are all acute condition. Then many lose motions in the short time. सवेरे से अगले 4 घंटे में 10-15 बार लूज मोशन हो गए. Might be because of food poisoning or something else. या लार्ज वॉमिटिंग हो गए, 10-15 बार उल्टियां होगी. ये एक्यूट क्यों है, सीरियस क्यों है?
क्योंकि जितने बार उल्टी होती है उतने बार हमारा शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, फिर सोडियम पोटेशियम ये निकल जाता है. सो देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग डिहाइड्रेशन एंड गेटिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और ये दोनों चीजें खतरनाक होती है. देन वेरी हाई ग्रेड फीवर, बुखार है एकदम 104 105 हो गया है, दैट इज ऑल्सो एक्यूट. क्योंकि ज्यादा बुखार हो जाएगा तो सडनली बॉडी सिस्टम्स विल स्टॉप फंक्शनिंग. या आपने सुना होगा बच्चों को कभी जब मिर्गी का अटैक आता है तो उसको डॉक्टर क्या पूछता है, अरे बचपन में तुझे बहुत बड़ा बुखार आया था क्या? यदि बुखार बहुत ज्यादा मात्रा में आया होगा, ट्रीटमेंट नहीं लिए होगी तो ब्रेन में गए बोलते और फिर उसको मिर्गी आती है. सो हाई ग्रेड फीवर, अनेबल टू पास यूरिन, ये यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 60 जेंट्स लोगों में, मेल पुरुषों में प्रोस्टेट नामक गांठ होती है, वो बढ़ जाती है, इसलिए पेशाब के रास्ते पे रुकावट आ जाती है और इज अनेबल टू पास यूरिन. ये भी एक्यूट कंडीशन है. ही हैज टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, और उसका रास्ता शुरू करके पेशाब बाहर निकालना जरूरी होता है. देन ब्लीडिंग पर रेक्टम, ईयर, नोज, थ्रोट. नॉर्मली हम नाक में से, कान में से या गले से या संडास में हमें कभी खून नहीं गिरता है. सो एनी ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल दिस साइट इज एबनॉर्मल. अभी ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ढूंढना आवश्यक है, क्योंकि कभी वो कैंसर की गांठ हो सकती है या कभी कुछ और पॉलिप हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और वो खून जाते रहेगा तो क्या हो गया, वन डे यू विल एंड अप विद एनीमिया. So it is necessary to take treatment. So it again comes under acute. Excessive bleeding during menses. महिलाओं को महावारी में नॉर्मल जितना ब्लीडिंग होता है उससे ज्यादा होने लगा, तो अगेन यू हैव टू थिंक वेदर शी हैज गॉट सम pathology in the uterus, that is why she is getting excess bleeding. Otherwise again she will end up in anemia. Unable to make blood body movements due to cerebral stroke. मैंने अभी बताया था कि ब्रेन में हिमरेज हो गया, और फिर क्या होता है, राइट साइड में ब्रेन हिमरेज होने की वजह से लेफ्ट साइड जो हमारी शरीर की सही ढंग से काम नहीं करती है, ही इज गेटिंग पैरालिसिस, राइट हैंड, राइट लेग, ही इज नॉट एबल टू मूव इट. सो इट अगेन एक्यूट कंडीशन. क्योंकि यदि ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो खून जमा हो रहा था और बढ़ते जाएगा, और शुरुआत में सिर्फ उंगली नहीं हिला सकता था, बाद में हाथ नहीं हिला सकता था, फिर पैर नहीं हिला सकता था, फिर और बढ़ते बढ़ते और पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, बेहोशनेस हो सकती है. Unable to make body movements due to accidental injury causing fracture of the bone or simple sprain. एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ है, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होगा, he will not be able to make movement of the hand, and because of the fracture he will have pain. So if there is a pain, again the movements are not possible, so it comes under acute condition. And any condition which needs medical supervision, all these conditions are categorized under acute condition. Now why it is necessary to categorize the acute and chronic? Because in acute or serious condition no pathy works except allopathy, not yoga also. Acute condition में यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी कोई भी काम नहीं करता है, वहां पे सिर्फ एलोपैथी यूज करना पड़ता है. एंड सो पेशेंट हैज टू टेक मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. Once the acuteness is over and it becomes chronic, or when patient is advised to carry his daily routine, yogic kriyas can take care. So once the acuteness is over, then you can think of giving him yogic practices. Now what are chronic conditions? Once the symptoms listed above are either gone with treatment or they have become mild, now such patients can be treated with yogic practices. Now इसमें मुझे थोड़ा दो स्पेशल मेंशन करना है. इन केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ क्रॉनिक डिसीज, बट इफ इट इज इन्फेक्शियस, आपको मालूम है कि टीबी जो है संसर्गजन्य बीमारी है, मतलब एक को टीबी हो गया तो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है. उसके थूके में ट्यूबरक्यूलोसिस बैसिला होगी, इट इज कॉल्ड स्पुटम पॉजिटिव, ही इज इन्फेक्शियस. सो द पेशेंट क्रॉनिक डिसीज विथ इन्फेक्शियस टू नॉन इन्फेक्शियस, जब वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है तभी वो क्रॉनिक कहलाया जाएगा.
Then in case of heart attack patient, if he is discharged from hospital and advised to start his daily routine, then only he is treated as a chronic patient. Then in case of cancer, the allopathy treatment like surgery is over and he is taking radiotherapy or chemotherapy, that patient can be treated as a chronic condition. Now all these chronic condition patients, they can be treated with yogic practices, but that too with precaution. Now in lifestyle disorders, 21वीं सदी में 21वीं सदी है सेंचुरी ऑफ टेंशन, ताण तनाव की सदी है, और ताण तनाव की सदी के होने की वजह बीमारी कौन सी है? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड अदर कंडीशंस रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. नाउ दीज पेशेंट्स after diagnosis, once he is stabilized and advised to continue same medicine lifelong, that is called chronic. अभी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कैसे निदान होता है आपको याद होगा. कोई पेशेंट आप पूछो, अरे डायबिटीज, हाँ कल डॉक्टर के पास गया था, क्यों गया? नहीं, चक्कर आ रही थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने बोला जरा ब्लड टेस्ट करके आ जाओ. खून टेस्ट किया तो देखा ब्लड शुगर 400 था, 400. नाउ दैट 400 हैज इट बिकम इन वन डे? It was there for last 6 months, but body has got a very good compromising compensatory mechanism. इसलिए वो सहती है. जब उसके सहने के परे जाता है तभी वो तकलीफ होती है, तभी उसको चक्कर आ जाती है. या ब्लड प्रेशर पेशेंट जो है, आहिस्ते आहिस्ते ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है. जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको चक्कर आती है, आंखों के सामने अंधारी आती है, वो गिर जाता है. फिर डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है ब्लड प्रेशर 200 और 100 था. तो एक दिन में हुआ क्या? नहीं, वो काफी दिन से था, लेकिन उस दिन महसूस हुआ. अभी ऐसे पेशेंट को हम पहले क्या करते हैं? विल गिव सम टैबलेट्स, 1 और 2 टैबलेट्स. फिर हम क्या कहेंगे, ये तुम 2-3 दिन लो, फिर 4 दिन के बाद वापस आओ, फिर हम ब्लड प्रेशर देखेंगे या ब्लड शुगर टेस्ट करके देखेंगे. यदि वो शुगर कंट्रोल में आई होगी तो ठीक है, इतना डोज सफिशिएंट है. नहीं आई होगी तो हम क्या कहेंगे, ठीक है अभी ऐसा करते हैं, हम 2-2 गोली बढ़ा देते हैं. या ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं आया तो फिर बोलते हैं सवेरे 1 गोली लो, शाम को 1 गोली लो. फिर 8 दिन के बाद फिर बुलाते हैं. जब तीसरी बार बुलाते हैं तब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया या शुगर नॉर्मल हो गई, फिर हम क्या कहते हैं, हाँ नाउ दिस इज योर डोज, दिस यू हैव टू कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. जब ऐसे डॉक्टर बताते हैं, दैट टाइम ही इज कंट्रोल्ड. So once he is stabilized and advised to continue same medicines lifelong, then it can be treated with yogic practices. नहीं तो डायबिटीज डायग्नोस हो गया आज, ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया और कल से बैठो योगा करने को, तो he will not have good results. Now in case of stroke patient, once he is discharged and advised to attend physiotherapy for paralysis of the body, then you can give him yogic practices. Now, little detailed mention about tuberculosis and carcinoma. Now, tuberculosis, अभी भी इंडिया में टीबी जब होता है, कोई किसी को गपछप लगा रहे आप 4-5 लोग और सामने से एक आया और उसको तो ये बोलता है उसको टीबी है, तुरंत आपकी रिएक्शन क्या होती है? आप आपके नाक के ऊपर हाथ लेते, अरे टीबी है कि चलो चलो अपन यहाँ से निकलते. क्यों? क्योंकि वो संसर्गजन्य रोग है, ऐसा हमें मालूम है. और फिर हम ऐसे करेंगे तो पेशेंट देखता है मैं आए तो भाग गए. फिर वो क्या करता है, अगले टाइम उसको पूछा क्या है तुझे, कुछ नहीं जरा खांसी आया था. टीबी ऐसा नहीं बताएगा, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज स्टिल ए सोशल स्टिग्मा इन इंडिया. सो लोग दे ट्राई टू हाइड इट. इसीलिए हम जब पेशेंट आता है, हम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है, पेपर हम बनाते पर्ची, उसके ऊपर हम कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखते. हम क्या लिखते हैं? कॉक्स. ये कॉक्स नाम है, he is the scientist who has invented this. So we write COX. We write COX adenitis, COX abdomen, pulmonary COX. So patient को समझता नहीं है ट्यूबरकुलोसिस है. दूसरा, कैंसर. आपने देखा होगा किसी को कैंसर के निदान हो गया तो पेशेंट एकदम आधा, क्या अभी हो गया, मेरा कैंसर हो गया, तो हम उसके ऊपर कभी कैंसर वर्ड नहीं लिखते. हम क्या लिखते हैं? कार्सिनोमा. तो पेशेंट को समझता नहीं कि ये कैंसर है करके, वो बोलता हाँ मुझे कार्सिनोमा इंटेस्टिनल है. बिकॉज इफ यू राइट कैंसर, ही इज हाफ डेड. सो हियर ऑलवेज वी राइट कार्सिनोमा. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सिमिलैरिटी बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर एंड डिफरेंस बिटवीन them.
Now, tuberculosis and cancer, they can affect any part of the body. शरीर के किसी भी पार्ट को कैंसर हो सकता है, किसी भी पार्ट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि हमारी काफी लोगों की जानकारी ऐसी थी कि ट्यूबरकुलोसिस ना फेफड़े का होता है, फेफड़े का नहीं, शरीर के सभी इंद्रियों को टीबी हो सकता है। उसी प्रकार कैंसर भी शरीर के किसी भी इलाके को हो सकता है। ये हो गई सिमिलैरिटी। Now, what is the difference between two? Tuberculosis can be cured completely if treated properly and regularly. टीबी हम पूरी मात्रा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैंसर इज ए डिसीज विच वी डोंट नो द कॉज, सो वी डोंट नो ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाई वो हम पूरी तरह से अच्छा नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। बट जस्ट ज्वाइनिंग द योगा, पेशेंट कैन नॉट गेट क्योर्ड। Now, how to deal with the tuberculous patient? अभी ये ज्यादा जानकारी देने की इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी हमारे इसमें tuberculosis is having a social stigma. Now, social stigma मतलब patient will try to hide it. जब हाइड करने की कोशिश करता है तो बहुत दिक्कतें आती है। अभी आपके क्लास में यदि कोई पेशेंट आने लगा और वो टीबी है, फिर यदि आपके सामने वो आके बैठा और आपने उसको पूछा क्या है तुझे, या आपने पूछा क्या ट्यूबरकुलोसिस है क्या, तो पेशेंट बताएगा नहीं मुझे टीबी है करके, और समझो बताएगा तो आप बोलेंगे अरे टीबी है, टीबी के पेशेंट को हम योगा क्लास में नहीं ले सकते, तो आप जाओ। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे क्लास में भेजेंगे। वो दूसरे क्लास में जाके वहां पे क्या करेगा, वो बताएगा नहीं कि मुझे टीबी है, वो वहां पे जाके टीचर को बताएगा मुझे थोड़ा खांसी आया था, डॉक्टर ने दवा दिया था, अभी ठीक हो गया, आप मेरे क्लास में ले लो। फिर ऐसा यदि वो क्लास में लिया तो क्या होगा, ही विल इन्फेक्ट अदर पेशेंट। सो द responsibility of the yoga teacher is here, never ask positive question. पेशेंट को आप कभी ना पूछे कि तुझे टीबी है क्या, क्योंकि वो बताएगा नहीं। फिर आप उसको कभी मत पूछो कि मुझे वो टीबी का रिपोर्ट बता। व्हाट यू से, ओके आई नो यू हैव गॉट सम खांसी, ऐसा करो आप मुझे कल सब रिपोर्ट लाके बताइए, मैं सब रिपोर्ट देखूंगा और फिर आपको उसके हिसाब से योगा का अभ्यास दूंगा। अभी उसमें एक ध्यान में रखो कि मत पूछो कि वो थूकी का रिपोर्ट लेके आना, थूकी का रिपोर्ट लेके आना, ऐसा यदि आप पेशेंट को कहेंगे तो पेशेंट उतना ही निकाल के बाजू रख देगा और फिर बाकी रिपोर्ट दिखाएगा। अभी इसमें जरूरत क्यों है कि स्पुटम जो है थूकी का रिपोर्ट यदि पॉजिटिव होगा तो यू कैन नॉट टेक हिम इन द क्लास बिकॉज ही विल इन्फेक्ट अदर पेशेंट। बट इफ यू टेल हिम कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दैट स्पुटम रिपोर्ट, ही विल डेफिनेटली टेक इट आउट एंड कीप इट एट होम। सो डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चन। वंस ही ब्रिंग्स द रिपोर्ट्स, सी ऑल द रिपोर्ट्स, देखने के बाद आप आपके मन में डिसाइड करो कि ये इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है, ये रिसेंटली डायग्नोस्ड है, he has not taken any treatment, तो ऐसे पेशेंट को हम क्लास में नहीं ले सकते। अभी क्लास में नहीं ले सकते तो आप यदि बोलेंगे कि मैं तो आपको क्लास में नहीं ले सकता है, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास से निकल जाएगा और फिर दूसरा योगा के टीचर के पास जाएगा और वो कहेगा कि मुझे थोड़ा खांसी था, डॉक्टर ने दवा दिया, अभी ठीक हो गया, तो अभी मुझे योगा करना है, तो दूसरा टीचर बेचारा योगा क्लास में ले लेगा। सो दिस इज द important duty of the first yoga teacher, not to refuse the patient at the first set. What you have to say, okay, I have seen your reports, थोड़ा सा खांसी है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये योगा का अभ्यास देता हूँ। क्या देंगे उसमें, जस्ट गिव हिम प्राण धारणा, ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, अनुलोम विलोम 5 बार ओंकार और हल्की कपालभाति 5 टाइम्स। आप बताइए, इतना अभ्यास करने के लिए आप क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप ये घर में करो और वहां पे आप करके दिखाओ, उसको करने को मत लगाओ आपके सामने, नहीं तो वहां पे बैठे बैठे आपको इन्फेक्ट कर देगा। उसको बोलो ये आप घर में करो, 1 महीने के बाद मुझे आके मिलो। 1 महीने के बाद जो वापस आ जाएगा तो उसको आप क्या करो, 5 बार ओंकार के बजाय 10 बार ओंकार कर दो। कपालभाति जो 10 बार दी थी वो 20 बार कर दो। ओंकार हो गया, अनुलोम विलोम 5 के बजाय 10 बार कर दो और थोड़ा ध्यान सिखा दो, बोलो आंख बंद करके 5 मिनट ध्यान करना।
And last important thing, stress should be given on continuing the medical treatment as yoga itself cannot cure the disease. अभी ट्यूबरक्यूलोसिस में ध्यान में रखने की ये जरूरी है कि टीबी एंटी टीबी ड्रग से ठीक हो सकता है, लेकिन यदि वो ट्रीटमेंट सही ढंग से लेगा तो, यदि नहीं लेगा तो क्या होगा, वापस रिकवर होता है। और ये आजकल अक्सर अपने यहाँ पे होता है, टीबी का जब दवा चालू करते हैं तो पेशेंट का वजन बढ़ता है, उसको भूख लगने लगती है, उसको अच्छा महसूस होता है, फिर वो सोचता है मैं अच्छा हो गया हूँ, अभी दवा क्यों लूँ, फिर वो दवा बंद कर देता है। क्योंकि वो डॉट सेंटर पे जाके वहां पे दवा लेगा तो उसको लगता है अरे मैं वहां पे जाता है तो बाजू वाला देखता है अरे वो डॉट सेंटर पे गया तो उसको टीबी है, तो फिर वो डॉट सेंटर जाना बंद कर देता है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। आप पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि एमडीआर मेडिकल ड्रग रेजिस्टेंट केसेस बढ़ रहे हैं। अभी उसने दवा बंद कर दी और फिर टीबी जो अंदर थे बैसिला वो फिर बढ़ने लगे, फिर कुछ दिन के बाद उसको वापस तकलीफ होती है। उस समय उसको यदि पहली जो गोलियां थी वो दिया तो क्या होगा, असर नहीं आएगा। एंड देन दैट विज टर्म एज ए मेडिकल रेजिस्टेंट डिसीज, एमडीआर केसेस, और फिर वो सही ढंग से अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ सोशल स्टिग्मा एंड पेपर ट्राई टू हाइड इट। सो ऐसे लोगों को आपको बार बार बताना है कि आपकी टीबी की दवा आपको जरूर लेना, आपको टीबी मत बोलो, जो दवा आपको चालू है वो चालू रखना है, जब तक डॉक्टर बंद नहीं करते तब तक बंद नहीं करना है। क्योंकि यदि वो दवा बंद कर देगा तो यौगिक इससे वो पूरा ठीक नहीं होगा एंड ही विल लैंड अप इन द एमडीआर केस। सो दिस teacher should always remember that he should not refuse the patient, he should give him basic things and stress should be given on taking the treatment. Now upon cancer patient, as we do not know the cause of the cancer, we don't know the treatment of the cancer, what we do, जहाँ पे खराब हो गया कट करके निकाल देते हैं and you give chemotherapy, radiotherapy. So here we have to give the yogic practices to boost the morale to face the consequences. Selection of yoga module will depend upon which part of the body is affected and whether he can practice it without any harm or discomfort. अभी आप लोगों को मालूम होगा कि कैंसर हो गया, उसको इलाज किया, फिर कुछ दिन के बाद वापस हो गया बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिकरेंस। या शरीर के एक हिस्से में कैंसर हुआ था, ये पेशी खून के जरिए दूसरे इलाके में जाते हैं, समझे हाथ के हड्डी में गए या पीठ के स्पाइन के वर्टिब्रे रीढ़ के हड्डी में गए तो वहां पे फिर वो कैंसर तैयार होता है, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। अभी ऐसे पेशेंट को समझे हाथ में उसके ये हड्डी में पहुंच गया या रीढ़ के हड्डी में गया और आप उसको भुजंगासन करने लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ के ऊपर जोर देने से यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि पेशेंट, कैंसर के पेशेंट को किसी प्रकार के आसनों का अभ्यास ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। We have to give more stress on breathing techniques and meditation. अभी हम पहली संस्था लेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी इसमें सबसे पहले है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। नाउ हाई ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 110/70. What is 110? 110 is a systolic blood pressure and 70 is a diastolic blood pressure. Now what is systolic? जो हमारा हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब खून बाहर फेंकता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्शन, द प्रेशर एट दैट जंक्चर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 110. एंड डायस्टोलिक मीन्स जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर स्लोली रिलैक्स होता है, सो दैट रिलैक्सेशन pressure is a diastolic pressure. Now normally it is 110/70. 110 is a systolic, 70 is a diastolic. Now systolic going above 140 mm of Hg and diastolic going above 90 millimeters of mercury is called high blood pressure. Now what are the causes of blood pressure? First, mental tension, manasik taan tanav. Second, obesity. Third is a lack of exercise. एजिंग प्रोसेस, जैसे उम्र बढ़ती है तो जो नसें हैं हमारी आर्टरीज, शुद्ध रक्त वाहिनी, उनकी जो वॉल है इट बिकम्स रिजिड, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती है। अभी इलास्टिसिटी कम होने से क्या होगा,
अभी हमारे शरीर की ये इलाके में जो नस है वो इलास्टिक होगी, तो यहाँ से जो हार्ट से पंप होता है ब्लड, वो वहां तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हार्ट विल पंप, तो इलास्टिक होने से आकुंचन प्रसन्न होगी प्रेशर के हिसाब से, और खून आगे चले जाएगा। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, दे बिकम लिटिल रिजिड। रिजिड होने से क्या होगा? हार्ट जब पंप करता है तो ये इलास्टिक न होने की वजह से, हार्ट से पंप होने की वजह से जो खून यहाँ से जाता है उसको हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि वो खून यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो स्लोली एज एज एडवांसेस योर ब्लड प्रेशर गो ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज एजिंग प्रोसेस। देन किडनी डिसऑर्डर। नाउ किडनी डिसऑर्डर, usually diabetes, I told you it causes, if it has got effect on all organs of the body, particularly kidneys. If kidney के ऊपर असर हो गया तो kidney will not function properly, and वहां पे रीनल एंजियोटेंसिन के हार्मोन सीक्रेट होता है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कार्डियक फेल्यूर, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और थक जाता है, रुक जाता है। आपने देखा होगा, आप ये पेपर में पढ़ते हैं कभी कभी कि एथलीट वो रन कर रहे थे, दे आर रनिंग इन द स्पर्धा में भाग रहे थे, और भागते भागते आखिरी में वहां तक पहुंचा एंड कोलैप्स हो गया और मर गए। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ही व्हेन इज रनिंग ही इज ट्राइंग टू कोप अप, सो हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग मोर टू हेल्प हिम रन मोर। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हार्ट थक जाता है और रुक जाता है, और इसीलिए वहां तक पहुंचा, गिर गया और he was declared dead. That is cardiac failure. Then heart attack या heart disorder, again blood supply to the heart reduces and he may get heart attack. Then stroke. अभी यहाँ पे हार्ट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से जो नसें जाती है ब्रेन के तरफ, डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, और ब्रेन को जो नसें जाती है वेरी डेलिकेट है, एकदम डेलिकेट रहती है, उनकी वॉल जो थिन रहती है, पतली रहती है। अभी हार्ट का जो प्रेशर यदि बढ़ गया तो क्या होगा? इट विल पंप विद ए बिगर प्रेशर। तो ये प्रेशर ये सह नहीं सकती है और ये फट जाती है, और फिर वहां पे हिमोरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, एंड दैट पेशेंट डेवलप स्ट्रोक एंड देन ही गेट्स अ पैरालिसिस। ना सिम्टम्स क्या है? यूजुअली इनिशियल पीरियड में पेशेंट को हेडेक होगा, फिर गिडीनेस होगा, चक्कर आएगी, या ब्लड विजन, आंखों के सामने अंधारी आ जाएगी, देन नाक में से कभी कभी खून आ जाता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास एक बार पेशेंट आया था, अच्छा खासा था, कुछ तकलीफ नहीं थी, और सडनली वाज ब्रॉट इन अनकॉन्शियस स्टेट, बेहोश लाया गया। देखा ब्लड प्रेशर उसका 200/120 था, और उसको ब्रेन में हिमोरेज हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। तो हमने उसकी हिस्ट्री पूछी, क्यों भाई कुछ तकलीफ थी? नहीं, वो तो एकदम अच्छा था, हेल्दी था बोले। फिर उसकी वाइफ आई, बोले हाँ ये रोज सवेरे क्या करते थे, एनासिन की गोली खाते थे। क्यों खाते थे? रोज सर दर्द होता था करके एक एनासिन गोली खाते थे। अब ये सर दर्द क्यों होता था? टेम्पररीली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, उस समय उनको हेडेक हो जाता था, लेकिन ही इग्नोर्ड इट, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, रोज एनासिन खा के चुप बैठते थे। और एक दिन क्या होगा, ब्लड प्रेशर रोज बढ़ते एक दिन ऐसा समय आया कि इतना बढ़ गया कि यहाँ पे आर्टरी जो फट गई और उनको ब्रेन में हिमोरेज हो गया। सो ध्यान में रखो कि बार बार हेडेक होता है तो एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर लो। चक्कर आना या आंखों के सामने अंधारी आना, सोचो कि क्या मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया था। फिर नाक से खून आना, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट साइन कि ऐसा सडनली खून क्यों आ गया, तो शायद क्यों यहाँ पे पतली नसें रहती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये फट जाती है और यहाँ से खून आता है। तो एनी वन ऑफ दिस सिम्टम इज देयर, यू शुड चेक योर ब्लड प्रेशर। नाउ योगा कैन हेल्प दिस पेशेंट। फर्स्ट ही हैज टू गेट कंट्रोल विथ मेडिसिन। जैसे पहले बताया मैंने आपको कि पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ गया, फिर एक बार उसकी गोली स्टेबलाइज कर दी गई, then you can start giving him yogic practices. He has to continue medicines, should do regular follow-up with doctor who will decide about further doses. You will not reduce the dose. Yoga teacher and patient, he will not stop the medicine on his own, or he will not reduce or increase the dose. Now, what are the yoga practices you can give? Now, hypertension
high blood pressure, there is a effect on the heart. Heart is working, pumping more. तो वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है. तो ऐसा अभ्यास हमें देना है कि जिससे उसके हृदय के ऊपर और ज्यादा प्रेशर न आए, उसके हृदय को ज्यादा काम करने की जरूरत न पड़े. तो ये अभ्यास हमें सिलेक्ट करना है. तो उसमें पहले है जो शवासन, फिर अर्ध हलासन. अर्ध हलासन एक पैर से करना है, फिर उसकी क्षमता देखो, फिर उसको आप 2 पैर से दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक ही पैर से देंगे. पवन मुक्तासन एक ही पैर से दो, क्योंकि दोनों पैर से साथ में दिया तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा. सो यू डू इट विद वन लेग ओनली. दैट टू अर्ध पवन मुक्तासन यू कैन गिव, अर्ध हलासन यू कैन गिव. क्रोकोडाइल पोजेसेस, अभी ये वेरिएशंस क्यों देना है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी विल मेंटेन. क्योंकि हार्ट तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन बाकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए. उसीलिए हम अलग अलग आसनों का अभ्यास देंगे, लेकिन जिसके जरिए उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. अभी सिटिंग आसन में क्या कर सकते हैं, दंडासन दे सकते हैं, वज्रासन कैपेसिटी के अनुसार दे सकते हैं, पर्वतासन इजी है, बैठे बैठे कर सकता है, गोमुखासन यदि कोशिश की आसानी से कर सकता है तो दे सकते. पहले ये सब आसन दो, फिर गोमुखासन इंट्रोड्यूस करो, फिर वक्रासन इंट्रोड्यूस करो, ब्रह्म मुद्रा दो ताकि गर्दन के स्नायु स्ट्रिप ना हो जाए, गर्दन की तकलीफ ना हो. तो ये आसन हम उसको दे सकते हैं. फिर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग में हम ताड़ासन दे सकते, चक्रासन दे सकते, त्रिलोकासन दे सकते. आसन मेडिटेटिव में पद्मासन दे सकते, सुखासन दे सकते. प्राणायाम में प्राण धारणा, देन उज्जयी, क्रिया योग जिसमें अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री. अभी ओंकार यदि दूसरे रिलीजन का यदि कोई साधक होगा तो हम उसको कंपलसरी ओंकार ही करना चाहिए ऐसे नहीं कह सकते, हम उसको आमीन या अमीन भी कह सकते हैं. उसी प्रकार गायत्री के उच्चारण के लिए उसके बजाय नौकार मंत्र, या मुस्लिम कम्युनिटी का होगा तो उसका अलग एक मंत्र है वो हम उसको दे सकते हैं. मेडिटेशन, कैवल्यधाम ट्रेडिशन विथ आई क्लोजर टेक्निक फॉर 20 minutes that will help to reduce his blood pressure. शीतली, हमने काफी पेशेंट्स में शीतली का इफेक्ट देखा है. ब्लड प्रेशर के पेशेंट को यदि हम 20 टाइम शीतली करने को देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है. भ्रामरी, चंद्रभेदन, देन शुद्धि क्रिया में कपालभाति. अभी कपालभाति जो हम कल देख रहे थे, नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये हम नहीं देंगे. उसको लाइट कपालभाति विदाउट फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दैट हैज टू बी गिवन एंड दैट टू एज पर इज कैपेसिटी. 20 बार दो, 30 बार दो, कंपल्सरी मत करो कि 100 बार ही करना है. जल नीति टू कीप द नेजल पैसेजेस क्लीन. So this can be given for the hypertension patient. Now coming to the heart disease or acute coronary disease. It is also called ischemic heart disease, myocardial infarction, unstable angina. Now less blood flowing through the coronary artery, supplying less blood to the heart, and that is why patient gets coronary artery disease. अभी इसमें causes क्या है? Mental stress, atherosclerosis, cholesterol deposition into the vessel, high blood pressure, hereditary, anuvanshik, obesity because of the overweight, smoking and drinking habits, sedentary job leading to the lack of physical exercise, side effects of modern luxurious life, and most important is the emotions. अभी ये हार्ट है, हमने कल देखा ये कोरोनरी आर्टरी है, और ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे ये हार्ट अटैक आ गया, पार्ट पूरा डेड हो गया. अभी इटियोलॉजी क्या है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है या तो स्पाज्म में जाती है, थरथराहट होती है, या इसमें कुछ एम्बोलिज्म हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या थ्रोम्बोस आ जाता है, इसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है. अभी इसके कारण क्या है, डाइट, ज्यादा ऑयली खाना, लिपिड का खाना, इसकी वजह से हो सकता है, या ओबेसिटी, ज्यादा वजन बढ़ने से हो सकता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने से आगे हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, टेंशन और एंडोक्राइन. दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये हम बदली कर सकते हैं. इसके ऊपर हमें ध्यान देना है और उसको हमें दूर करना है. अभी नॉन मॉडिफाइबल ये हम बदली नहीं कर सकते. एक अंश है अनुवंशिकता, उम्र, जैसे मैं आपने बताया कि जैसे उम्र बढ़ती है तो नसें रिजिड हो जाती है. एंड इन फीमेल्स टिल द मेनोपॉज, महावरी जब आती है तब तक उनको ईस्ट्रोजन सिक्रीशन शरीर में होते रहता है, एंड इट एक्ट्स एज ए बफर अगेंस्ट हार्ट अटैक. लेकिन एक बार
मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद में मेन एज वेल एज वुमेन बोथ हैव गॉट इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, हार्ट अटैक जब आया है तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेनियस काम नहीं करना है, या हेवी खाना नहीं खाना है, या स्ट्रेस नहीं लेना है, और ठंडे में ज्यादा एक्सपोज नहीं होना, बिकॉज दे विल एग्रीवेट इट, उनको ज्यादा मात्रा में और तकलीफ हो सकती है. इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, कार्डियोग्राम, 2D एको, देन सीरम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, स्ट्रेस टेस्ट एंड एंजियोग्राफी. अभी ये एंजियोग्राफी, हार्ट इज गॉट अ मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई बहुत बड़ी मात्रा में होता है. अभी ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, जब एंजियोग्राफी मैंने दिखाया तो समझो ये ब्लॉक हो गई थी. तो योगा कैसे हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू ओपन द कोलैटरल वेसल्स. अभी समझो एक आधे रास्ते मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम हो गई तो पुलिस हवलदार क्या करता है, वो बाजू के रास्ते से रास्ता निकाल देता है, वहां से जाओ बोलता है, ट्रैफिक डाइवर्ट करता है. उसी प्रकार यदि ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ये आर्टरी, इट विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ दिस आर्टरी, एंड कुछ दिन के बाद ये आर्टरी जो है इसकी साइज इसकी जैसी हो जाएगी. और जब वापस हम रिपीट करते तो हमको दिखता है कि अरे आर्टरी का ब्लॉक निकल गया, ये आर्टरी बंद हो गई, लेकिन ये आर्टरी ने इसका काम ले लिया, एंड दैट इज व्हाई इट हैज इम्प्रूव्ड. बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक इज डोंट टेक एनीथिंग टू द हार्ट. मैं बुद्ध की एक कहानी बताता हूँ शॉर्ट में. वो 5 घर में भिक्षा मांगते थे, तो 5 घर भिक्षा मांगते थे, तो दूसरे घर गए, वहां पे थोड़ा मिला, तीसरे घर गए तो धनिक का घर था, उनको लगा यहाँ पे काफी मात्रा में भिक्षा मिल जाएगी तो 5 घरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वहां पे जाके खड़े होते, ओम भिक्षांदेहि. तो जो धनिक रहता है वो घर से बाहर आता है, बोलते क्या है, आपको काम करने को नहीं होता है, अच्छा बड़ा खासा फिजिकल फिटनेस है, काम करो. हम दिन भर काम करते, पसीना बहाते, सवेरे से शाम तक काम करते, पैसा कमाते, और आपको फुकट में देने का नहीं देते, चलो जाओ. 2-4 गाली दे देता है. ये बोलते हैं ओम भिक्षांदेहि, चुपचाप आगे चले जाते. उतने में उनकी जो धनिक आदमी की वाइफ रहती है वो पीछे से देखते, अरे अरे स्वामी ने जो कोई ने क्या किया, वो पीछे से आते, बोलते महाराज महाराज रुको, मैं आपको सीधा ला के देती. वो आके उनको सीधा देती है. तब तक ये धनिक आदमी सोचता है, यार ये सच में कुछ साधु होगा और इसने मुझे शाप दिया तो मेरा सब ये धन दौलत सब निकल जाएगा, चलो जाने दो, अपन भी दे देते उसको. तो उसको वापस बुलाता है, बोलते हम आइए साधु महाराज आइए. बोलते क्या है, रुको 1 मिनट. वो अंदर जाता है, एक सेब की टोकरी लेके आता है, कहता है ये आपको दे रहा हूँ. तो ऐसा देने लगता है तो बोलता है साधु महाराज मैंने आपको बहुत गाली गलौज किया, खराब बात किया, आपको गुस्सा तो नहीं आया ना. तो साधु महाराज बोलते, बुद्ध जो बोलते, अभी आप क्या कर रहे, बोले मैं ये आपको सेब की टोकरी दे रहा हूँ, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो क्या होगा. तो धनिक बोलता है मेरे हाथ में रहेगी. तो उसी प्रकार वो बोलते हैं कि जब आपने मुझे गाली गलौज किया, भला बुरा कहा, उस समय वो मैं स्वीकार नहीं किया तो कहाँ रहा, धनिक के पास रहा. ब्लड प्रेशर किसका बढ़ गया, धनिक का बढ़ गया. तकलीफ किसको हो गई, धनिक को हो गई. इसलिए डोंट टेक एनीथिंग टू द हार्ट. कोई कुछ गलती से कुछ बोल दिया तो आपने को नहीं बोला, दीवार को बोला, ऐसे बोल के छोड़ देना चाहिए. नाउ हार्ट डिसीज, दिस इज एक्यूट कंडीशन, सो इट हैज टू बी ट्रीटेड विद एलोपैथी. अभी इसमें कैंसर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अभी लोग बोलते हैं अरे हाँ योगा से ठीक हो सकता हूँ, तो आईसीयू से डिस्चार्ज हो गया, दूसरे दिन घर आ गया तो योगा टीचर को फोन करता हूँ, मुझे योगा सीखना है. अभी आपने वहीं से फोन पे बोल दिया, अरे अच्छा अभी तुमको हार्ट अटैक आया था, आईसीयू से कल ही डिस्चार्ज हो गया, नहीं मैं आपको योगा नहीं दे सकता क्योंकि हमको बताया कि योगा तुरंत नहीं दे सकती, यू आर इन एक्यूट कंडीशन. तो पेशेंट क्या करेगा, अच्छा ठीक है, फोन रख देगा, दूसरे को फोन करेगा, कहेगा मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ था, मैं एडमिट हुआ था, मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, अभी ठीक है, मुझे योगा सिखाओ. वो बताया रहेगा नहीं मुझे हार्ट अटैक आया था. और यदि ऐसा दूसरा टीचर आके उसको योग देगा तो गिविंग ए फुल योगा मॉड्यूल टू सच ए पेशेंट इज लाइक ए व्हिपिंग टायर्ड हॉर्स, तो उसको ज्यादा तकलीफ हो सकती है. इसीलिए आपका अहम कर्तव्य है कि आप, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, कल आके मिलता हूँ, उसके रिपोर्ट्स देखिए, फिर आप बताइए हाँ ठीक है आपके रिपोर्ट सब मैंने देख लिया, आप अभी फिलहाल क्या करना है, तो सिर्फ प्राण धारणा करो, 10 की कपालभाति करो, 5 बार अनुलोम विलोम करो, 5 बार ओंकार करो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो. फिर मैं 8 दिन के बाद वापस आऊंगा, फिर 8 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ,
फुल योगा मॉड्यूल कब दे सकते हैं आप? हार्ट अटैक के पेशेंट को जब डिस्चार्ज देते तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अभी आप 15 दिन आप घर में स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना, फिर घर में घूम सकते हैं, फिर 3 हफ्ते के बाद हाँ नीचे जा सकते हैं, 1 महीने के बाद क्या कहते हैं, हाँ अभी थोड़ा बाहर सब्जी लाने को जा सकते हैं, फिर 1.5 महीने के बाद बोलते हैं हाँ अभी आप ऑफिस को जा सकते हैं, टैक्सी से जाओ, बस से, ट्रेन से मत जाओ और लाइट वर्क करो। जब ये परमिशन दी जाती है उस समय आप उसको योगा का पूरा मॉड्यूल दे सकते हैं, बट दैट टू स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गिव, यू डोंट गिव इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। जो भी कुछ योगा मॉड्यूल बताया है वो पहले दिन में या पहले 15 दिन में, 8 दिन में आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। यू हैव टू डू इट एज पर द इंडिविजुअल कैपेसिटी। हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, इसीलिए हर इंडिविजुअल के हिसाब से आपको योगा अभ्यास देना है। All the valvular diseases of the heart are mechanical defect and they need active medical line of treatment. इसलिए उसको हम योगा का अभ्यास नहीं दे सकते हैं। So first acute condition, you have to treat him with allopathy. Once he is discharged, then slowly you give pranadharana, then anulom vilom, ओंकार गायत्री 5 times and slowly go on adding few more cases. अभी इसमें योगा प्रैक्टिसेस क्या दे सकते हैं? तो एक तो हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसको ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो सी दैट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज मेंटेन, देयर फंक्शन इज मेंटेन, ब्लड सप्लाई इज मेंटेन। फॉर दैट यू विल गिव सम आसनास जो हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं लाएगी लेकिन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए मदद करेगी। तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? शवासन से शुरुआत करेंगे, फिर अर्ध हलासन 1 पैर से देंगे, फिर पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन देंगे, फिर क्रोकोडाइल वेरिएशन दे सकते हैं, दोनों पैर मोड़ के एक साइड करो, गर्दन अपोजिट साइड करो। हृदय स्तंभासन, दिस इज लिटिल डिफरेंट। इसमें हम हाथ दोनों हृदय के ऊपर रखते हैं और फिर सांस भरते भरते हाथ सीधा करेंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते वापस ले आएंगे, फिर सांस भरते भरते सीधा आगे लेंगे। ऐसे 3 प्रकार, सामने लो, साइड में लो और फिर ऊपर करो, सांस भरते भरते ऊपर, सांस चढ़ते चढ़ते नीचे। फिर आसना जो है भुजंगासन, जो एज पर इज कैपेसिटी यू कैन गिव। सिटिंग आसन में वज्रासन, पद्मासन, पर्वतासन, गोमुखासन, वक्रासन, ये आहिस्ते आहिस्ते आपको इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट की हैसियत देख के। स्टैंडिंग में ताड़ासन, चक्रासन कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन सिटिंग मेडिटेशन में देख सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री दे सकते हैं। उज्जयी 3 राउंड्स, शीतली 5 राउंड्स, शीतकारी 3 राउंड्स, भ्रामरी 3 to 5 राउंड्स वी कैन गिव। शुद्धि क्रिया कपालभाति, लाइट विदाउट फोर्सफुल एक्सलेशन एज पर कैपेसिटी। यहाँ पे हमें फोर्सफुल एक्सलेशन की कपालभाति देना नहीं है। जलनीति टू कीप दिस पैसेज क्लीन। देन मंत्र चैंटिंग, लघु लहरी, क्रिया योग, अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री एंड मेडिटेशन। दिस विल हेल्प हिम टू कम टू नॉर्मल। तो योग का मॉड्यूल ये आहिस्ते आहिस्ते हमें देना है ताकि he will come back to his normal and he will forget that he was having heart attack. ये अभ्यास हमें बहुत कॉशियसली देना है एंड इट द हार्ट अटैक पेशेंट ऑल्सो शुड रिमेम्बर कि जो योगा टीचर है ही शुड बी एक्सपर्ट इन गिविंग योगिक प्रैक्टिसेस टू द हार्ट अटैक पेशेंट। उसके साथ हम अभ्यास कर सकते हैं, इसके जरिए हम हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं। वॉल्वुलर डिसीजेस, दिस आर मैकेनिकल डिसीज, दिस हैज टू बी ट्रीटेड बाय मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये वॉल्व है, वॉल्व इसलिए बताओ, ये एक चैम्बर है, यहाँ से खून यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से खून इस आयोटा में जाता है, ये चैम्बर का यहाँ से यहाँ पे जाता है। ये आपको दिख रहा है, दिस इज वॉल्व, दिस इज वॉल्व, ये वॉल्व है। ये वॉल्व जब डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उसको वॉल्वुलर डिसीज कहते हैं। इसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगला बीमारी है एनीमिया। खून की कमी होने से एनीमिया होता है। उसके कॉजेस क्या है? एक तो डाइटरी डिफिशियंसी या बोन मैरो में खराबी हो गई, या ब्लीडिंग एक्सेस हो गया नाक में, कान में से, या उल्टी में से, या पाइल्स में, या कहाँ जख्म हो गए वहां से, हम मेंसेस से, तो इससे खून कम हो जाता है। इट मे बी acute when there is sudden loss of blood, hemoglobin is less than 7 grams, and chronic when poor diet is there. Now treatment, you have to give him green vegetable। 7 ग्राम के से नीचे खून लेवल हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, तो यू हैव टू गिव एक्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अबो 9 ग्राम है तो he has to take medical line of treatment, plus yoga can be as a adjuvant so that it will slowly improve the condition.
In chronic anemia, you can give him green vegetable, palak, everything, and then prana dharana, all these yogic practices which he can practice. क्योंकि एनीमिया में हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ऐसा अभ्यास नहीं देना है जिससे हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा. तो ये सब अभ्यास हम दे सकते हैं. ब्लड कैंसर, there are 4-5 types of blood cancer: acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, lymphoid leukemia. All these are Hodgkin. These are all cancer. And as I told you, there is no permanent cure for cancer in allopathy. Also in yoga, we have to give him so that his moral is boosted. This will use as a adjuvant therapy, and we have to decide it according to the patient general condition, and then only you give him yogic practices. Other patients is stabilized with medical drugs, then patient, specifically relatives, should be told that he may not get cured from cancer. ये हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को नहीं दे बताएंगे, लेकिन रिलेटिव्स को हम खास बताएं कि बाबा हम योग दे रहे हैं, लेकिन योग से उस पूरी तरह से अच्छा होगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते. और जो भी योगा मॉड्यूल देना है, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स capacity, individual capacity, how you can cope up with that. So these are all the cardiovascular diseases. I think I have covered most of it. Thank you very much. Hari Om.